بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 12 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 13 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری سٹوریز آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں کمنٹس میں لازماً بتایا کیجیے۔ اچھا کیا کہ ان کو نہیں بتایا، لیکن اب تم 1-2 دن باہر نکلنے میں احتیاط کرو۔ ویسے بھی تمہارے پاؤں میں چوٹ آئی ہے، جاب پر تو جانا ہوگا نا، چھٹی کر لو، میں بور ہوں گی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ قاتل پیچھے لگ جائیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، سیف مجھے آپ کی فکر ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو مجھے بھی اپنی فکر ہے، میں نے کہا، لیکن میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سیف کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے عادل کا قتل کیا ہے؟ عمیرہ نے کہا تو میں چونک گیا، یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہیں تھا۔ آپ سوچیں، آپ ان کے لیے خطرہ ہیں کیونکہ آپ اپنے بھائی کے قاتلوں تک پہنچنا چاہیں گے۔ یہ بات ہو سکتی ہے، میں نے کہا، لیکن پھر بیرون ملک ہونے والے حملے؟ میں نے اس بارے میں سوچا ہے، مجھے لگ رہا ہے عادل کے قتل اور پھر آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا تعلق ملک سے باہر ہی سے ہے۔ عادل کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کے اعضاء نکالے گئے ہیں، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اس کے پس پشت کوئی طاقتور شخصیت ملوث ہے جو اتنی دولت مند ہے کہ اپنی دولت کے بلبوتے پر سب کر سکتی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سیف اس صورت میں آپ کی جان خطرے میں ہے۔ وہ اس چیز کو بہر صورت راز رکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کے لیے واحد خطرہ آپ ہیں۔ باقی سب کو دولت سے خرید سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں۔ کیا آپ عادل کے قاتلوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ میں ساری دنیا کی دولت کے بدلے بھی اپنے بھائی کا قتل کیا تو اس کا چھوٹا سا حصہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے جسم سے جو لیا گیا ہے وہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں جذباتی ہو گیا، یہ بات وہ بھی سمجھتے ہیں، اس لیے واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اگر یہ دونوں انہی کے ہرکارے تھے تو انہوں نے بہت ہلکا انتخاب کیا۔ ایسا نہ کہیں، صورت و شکل پر نہ جائیں۔ یہاں ایسے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں جن کی صورت سے لگتا ہے کہ وہ چوہا بھی نہیں مار سکتے، اور انہوں نے درجنوں لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ہم ٹارگٹ کلرز میں اتنے خود کفیل ہیں کہ دوسرے ملکوں کو بھی برآمد کر سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس صورت میں کیا کروں؟ سب سے پہلے اپنا بچاؤ، وہ بولی۔ آپ ہیں تو سب کر سکتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ نہ رہے تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ عمیرہ نے میرے ذہن میں ایک نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس سے پہلے مجھے خیال نہیں آیا تھا کہ عادل کا قتل اور مجھ پر ہونے والے حملے ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے۔ اگرچہ اب بھی شبہ تھا، باہر مجھ پر جو حملے ہوئے تھے وہ کیا تھے، اور یہاں جو آج ہوا تھا اس کا تعلق اس سے تھا یا نہیں۔ البتہ ایک بات کا کسی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ یہاں حملہ کرنے والے وہی تھے جنہوں نے عادل کو نشانہ بنایا تھا، اور ان کا مقصد اپنا بچاؤ بھی ہو سکتا تھا۔ گوہر شاہ جی شاید اصل آدمی تھا۔ شاداب کو یاد آ رہا تھا کہ اگر یہی عادل کی موت کا ذمہ دار تھا تو یہ معمہ حل ہو سکتا تھا کہ اس کے اعضاء کس کے لیے نکالے گئے تھے۔ اب مجھے بے چینی تھی کہ اس شخص کا جلد از جلد پتہ چلایا جائے۔ انہی سوچوں میں گم میں رات دیر تک جاگتا رہا اور پھر دیر سے نیند آئی، مگر صبح فجر کی اذان کے ساتھ آنکھ کھل گئی تھی۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے نے کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو مجھ سے پھر لیٹا نہیں گیا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر پہلے عادل کے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھر اللہ سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں ہے تو میرے بھائی کے قاتلوں تک میری رہنمائی فرما۔ نماز پڑھ کر باہر لان پر آیا۔ صبح کا وقت تھا اور گرمی معمولی سی تھی۔ اصل گرمی کا آغاز دن چڑھنے پر ہوتا۔ کچھ دیر بعد شاداب بھی باہر آ گیا، وہ جاگنگ کرتا تھا، میں اس کے ساتھ دوڑنے لگا۔ بنگلے کے چاروں طرف لان تھا، اس لیے ہم اس کے گرد گھومنے لگے۔ میں نے اسے مزید پروگریس کے بارے میں پوچھا۔ آرام سے یار، یہ ہمارے ملک کی پولیس ہے، اتنی جلدی کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی معاملہ دوسرے ایس پی کے تھانے کا ہے، میں ایک حد سے زیادہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ تم جانتے ہو یہاں اسے معاملات میں مداخلت سمجھا جاتا ہے، ویسے بھی میری اس سے لگتی ہے۔ وہ پولیس سے اوپر آیا اور میں سول سروس سے آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے کہا، سوال یہ ہے کہ کیا میں اس معاملے میں ملوث ہوں؟ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ شاداب نے تیز چلتے ہوئے کہا، 2 قتل معمولی بات نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا فرد کون تھا؟ باغ کا چوکیدار، اسے سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ پہلے کو سینے میں دل کے پاس گولی لگی اور دونوں ہی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ یہ ہے وہ معلومات جو اب تک حاصل ہوئی ہے۔ دوسری لاش کو شناخت کے لیے پوسٹ مارٹم کے بعد مردہ خانے پہنچا دیا جائے گا، اس کی تصویر کی تشہیر کی جائے گی۔ شاداب نے شانے اچکائے۔ بدقسمتی سے ایسے کاموں کے لیے ہمارے پاس زیادہ بجٹ نہیں ہوتا ہے۔ اگر رقم ہوئی تو تصویر اخبارات میں تشہیر کے لیے دے دی جائے گی۔ تم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے؟ شاداب نے میری طرف دیکھا۔ میں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا نا، جلد بازی نہیں، بعض اوقات اس سے کیس خراب ہو جاتا ہے، ہوتا ہوا کام بھی نہیں ہوتا ہے۔
अभी तो ये देखना बेहतर रहेगा कि और कौन लोग इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। मेरे लिए क्या हुक्म है? तुमको बाहर नहीं जाना है। सुनो, कल जिस तरह से मेरी जान लेने की कोशिश की गई और मैं जिस तरह बचा हूं वो मैं ही जानता हूं। क्या मुझे अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार नहीं मिल सकता? उसने सोचा और सर हिलाया। तुम्हें लाइसेंस लेना होगा। वैसे मेरे पास पिस्तौल है। तुम्हें चलाना आता है? नहीं, बस 1-2 बार पकड़ा है, चलाया नहीं कभी। 1 मिनट, शादाब ने कहा और अंदर गया। चंद मिनट बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक सुरमई रंग का पिस्तौल था। इसका दस्ता शायद किसी किस्म के प्लास्टिक का बना हुआ था। यह वजन में हल्का लेकिन जदीद तरीन पिस्तौल था। उसने मुझे दिखाया और इसे इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। मैंने सेफ्टी केज हटाने और लगाने, फिर हैमर चढ़ाने का मुजाहिरा किया, फिर मैगजीन को लोड अनलोड किया। शादाब ने मेरे शाने पर हाथ मारा। एक्सीलेंट, तुमने एक ही बार में सीख लिया। यह कौन सा मुश्किल काम है? अब मैं तुम्हें शूटिंग का तरीका समझाता हूँ। उसने पिस्तौल लेकर इसका मैगजीन निकाला, फिर एक तरफ हाथ सीधा करके फर्जी निशाना लिया। ये देखो, पिस्तौल के हैमर और नाल की नोक को निशाने की सीध में लो। कलाई को मजबूत रखो और शाने के बजाय कोहनी से कंट्रोल करो। शाने पर जोर दोगे तो फायर करते हुए कोहनी और कलाई हिलेगी और उससे निशाना चूक जाएगा। इसलिए कलाई और कोहनी पर जोर दो। वैसे ये चीजें प्रैक्टिस के दौरान में खुद समझ में आ जाती हैं। यहाँ कोई शूटिंग क्लब है? बिल्कुल है, शादाब ने कहा। इसकी मेंबरशिप जरा मुश्किल से मिलती है, मतलब किसी पुराने मेंबर का रेफरेंस हो तो मिलती है, लेकिन मैं देखता हूँ। शादाब कुछ देर मुझे समझाता रहा, फिर हम अंदर आ गए। नहा धोकर आए तो मेज पर नाश्ता सजा हुआ था। मैंने एक बार फिर शादाब से कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ, मगर उसने अनसुनी कर दी। नाश्ता करके वो ड्यूटी पर चला गया। रूबीना कमगो और अपने बच्चे में मगन रहने वाली औरत थी, और वैसे भी वो सिर्फ शादाब के होते हुए मेरे सामने आती थी, वरना मैं अपने कमरे में होता था और दिन का खाना भी वहीं खाता था। यानी सारा दिन मैं अकेले ही होता था। गुज़िश्ता शाम हुमैरा की वजह से बाहर गया था और वक्त अच्छा गुजरा था, अगर इसमें आखिरी 1 घंटे को निकाल दिया जाता। वापस आने के बाद मुझे इंस्पेक्टर खालिद से बात करने का मौका नहीं मिला था और ना ही उसकी कॉल आई थी। मैंने उसका नंबर मिलाया, मगर वो बंद जा रहा था। अब तक मैंने आदिल का सामान चेक नहीं किया था। तमाम जरूरी चीजें मैं एक बैग में भर कर ले आया था। इसे खोला, एक फाइल में उसके तमाम तालीमी डॉक्यूमेंट्स थे। एक लिफाफे में उसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की डुप्लीकेट थी। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी था। इसके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें, जरूरी सामान था। फिर मैंने इसका लैपटॉप उठा लिया। ये लैपटॉप मैंने ही उसे दिया था। उसे ऑन किया। डेस्कटॉप पर बेशुमार फोल्डर्स और दूसरी चीज़ें थी। ज़्यादातर का ताल्लुक उसके MBA से था। कुछ म्यूजिक कलेक्शन था और कुछ मूवीज पड़ी थी। एक ज़ाती डाटा फोल्डर था। इसमें हमारी वो तमाम तस्वीर थीं जो अब एल्बम का हिस्सा थीं और आदिल ने इन्हें स्कैन करा के कंप्यूटर में महफूज कर लिया था। मैं अभी देख रहा था कि मोबाइल की बेल बजी। मैंने उठाकर देखा, अजनबी नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक अजनबी मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। डॉक्टर सैफ बात कर रहा हूँ। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर सरगोशी में बोला, डॉक्टर तुम्हारी जान खतरे में है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? कौन हो तुम? तुम्हारा एक खैर ख्वाह हूँ। तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ मुझे उसका अफसोस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और इसका एक ही तरीका है, इन लोगों की पहुंच से दूर निकल जाओ। किन लोगों की पहुंच से? मैं इनके बारे में नहीं बता सकता। वो बहुत जालिम है। आवाज में खौफ आ गया था। मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, उसने कहा और कॉल बंद कर दी। हेलो हेलो, मैंने कहा और फिर मोबाइल पर यही नंबर डायल किया, मगर रिकॉर्ड शुदा आवाज ने बताया कि मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। मैंने दोबारा और सहबारा ट्राई की, मगर यही जवाब आया। मैंने शादाब का नंबर मिलाया, मगर उसने कॉल काट दी। शायद वो किसी मीटिंग में था। मैंने दोबारा कोशिश नहीं की और 20 मिनट बाद उसकी कॉल आ गई। सॉरी यार, मीटिंग में था, इसलिए मैंने फिर कॉल नहीं की, मैंने कहा और उसे आने वाली कॉल के बारे में बताया। नंबर बताओ। मैंने उसे नंबर नोट कराया तो उसने कहा 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ। 10 मिनट का इंतजार खासा सबर आजमाज साबित हुआ। मैं कमरे में टहलता रहा और कॉल करने वाले के बारे में सोचता रहा। यह मुमकिन नहीं था कि कोई मजाक करता। मेरा यह नंबर बस चंद एक लोगों के पास था। इस शख्स ने आदिल का नाम लेकर मुझे मुस्तरिब कर दिया था। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि मुझे आदिल के आखिरी दिन के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो जब गायब हुआ था, चाहे कोई सुराग मिल जाता जो उनकी तरफ रहनुमाई करे, जो उसके कातिल हूं। बेल बजी तो मैंने लपक कर देखे बगैर कॉल रिसीव की और बेताबी से कहा, शादाब पता चला नंबर किसका है? मैं वही बात कर रहा हूँ। उसी शख्स की आवाज़ आई जिसने कॉल की थी तो मुझे झटका लगा। मैंने नंबर देखा, नंबर भी वही था। मेरा नंबर तलाश करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यह मुमकिन नहीं है, उसने आहिस्ता से कहा। तुम्हें खबरदार करके शायद मैंने अपनी जान भी खतरे में डाल ली है। तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था, तुमने फिर क्यों कॉल की? अब मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा। आदिल के कातिलों तक पहुंचने में अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो गौहर शाह जी है, मगर वो खुद कातिलों का साथी है। गौहर शाह जी?
मेरे रगों में खून तेज होने लगा। मरने वाले गंजे ने उसी शख्स का नाम लिया था। ये कहाँ मिलेगा? ताजगढ़, उसने कहा। पाइस का डेरा है। इससे पहले मैं गौहर शाह जी के बारे में मजीद कुछ सवाल करता, उसने कॉल काट दी और इस बार भी मोबाइल बंद कर दिया। फिर शादाब की कॉल आ गई। उसने कहा यह शफीउल्लाह नामी शख्स का मोबाइल नंबर है। आईडी कार्ड के मुताबिक वो शेखुपुरा का रहने वाला है। ये ट्रेस हो सकता है कि कॉल कहाँ से कर रहा था। इसमें 6 से 10 घंटे लग सकते हैं। वैसे मैंने कह दिया है। मैंने पूछा गौहर शाह जी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, शादाब ने जवाब दिया। मेरी कुछ देर पहले मुतलका थाने के एसएचओ से बात हुई है। ऐसा लग रहा है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ऊपर से कोई दबाव आया है। हो सकता है, शादाब ने कहा। वैसे भी हमारे यहाँ किसी वारदात के मुजरिम तफ्तीश से कम और इत्तेफाक से ज्यादा हाथ आते हैं। पकड़े किसी और वजह से जाते हैं और जब छित्तर पड़ते हैं तो साबका जराइम भी कबूल कर लेते हैं। कोई हमें किसी इत्तेफाक का इंतजार करूं कि आदिल के कातिल पकड़े जाएं और इकरार जुर्म कर लें। मैंने तलखी से कहा तो शादाब खामोश हो गया। यार ऐसा ही समझ लो, हमारे यहाँ जुर्म भी तकदीर का लिखा हुआ हादसा समझा जाता है और अक्सर औकात इस पर सिवाय सब्र के और कोई चारा नहीं होता है। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि शादाब एक हद से ज्यादा मेरी मदद नहीं कर सकता था। बेशक वो मेरा दोस्त था और एसपी था, मगर इसकी कुछ जिम्मेदारियां थीं और नौकरी की हदूद भी थी। वो इससे निकल कर मेरी मदद नहीं कर सकता था। वो मेरी जितनी मदद कर सकता था कर चुका था। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके कॉल काट दी। शायद मुझे खुद ही कुछ करना था और शायद इसीलिए मैंने शादाब को गौहर शाह जी के बारे में नहीं बताया था। मैं इस शख्स गौहर शाह जी तक रसाई चाहता था। मुझे हुमैरा का ख्याल आया कि इससे मदद तलब करूं, मगर फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं मर्द होते हुए एक लड़की से मदद मांगूं। इनके अलावा जिन लोगों से मेरी जान पहचान थी, मैं इनसे इस किस्म की मदद तलब नहीं कर सकता था। सोचते हुए मुझे ख्याल आया कि मैंने हुमैरा से पूछा ही नहीं कि उसने अपनी गाड़ी मंगवाई थी या नहीं। मैंने उसे कॉल की, वो अस्पताल में थी। सॉरी, मैंने शायद गलत वक्त कॉल की है, मैंने कहा और कॉल काट दी। चंद मिनट बाद हुमैरा की कॉल आई। वह हंस रही थी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुमने गाड़ी मंगवा ली थी? हाँ, ड्राइवर को कह दिया था, वही मुझे अस्पताल छोड़कर गया है। उसने बेपरवाही से कहा मैं आज शाम को आऊँगी। यह मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? उसका लहजा तेज हो गया। मैं हिचकिचाया। देखो, मेरा तुमसे अभी कोई बाकायदा रिश्ता नहीं है जो तुम यूं रोज मुझसे मिलो और मेरे साथ घूमो फिरो। क्यों, क्या मंगेतर का रिश्ता नहीं होता है? साथ घूमने फिरने के लिए वो भी काफी है। मैंने कहा आप चाहते हैं आपसे ना मिलूं? उसका लहजा दुखी हो गया। मैंने ये नहीं कहा है। तो और क्या कहा है? उसका लहजा फिर तेज हो गया। आपसे ना मिलूं, आपके साथ बाहर नहीं जाऊं तो और क्या मतलब हुआ? सैफ, आपको क्या हो गया? हम दोनों आइंदा जिंदगी के साथी हैं। प्लीज हुमैरा, मैं परेशान हूं। मैं परेशान नहीं कर रही, आपकी परेशानी बांटना चाह रही हूं। मैं जानता हूं आज शाम में बाहर जा रहा हूं। नहीं, कल जो हुआ है उसके बाद आप बाहर मत निकलिएगा। वो परेशान होगी। देखो, मैं मर्द हूं, घर में नहीं बैठ सकता। बस कुछ दिन और प्लीज, उसने इल्तिजा की। हुमैरा, ये जरूरी है, मुझे कुछ इशारा मिला है कि गौहर शाह जी नामी शख्स कहाँ हो सकता है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या इशारा मिला है? मैंने सोचा, फिर उसे नामालूम शख्स की कॉल के बारे में बता दिया। उसने सुनकर कहा आपने शादाब साहब को नहीं बताया? मेरा नहीं ख्याल कि वो एक हद से ज्यादा मेरी मदद कर सके। तैफियो पुलिस केस है, वो किसी कदर बेतकल्लुफी से बोली। आप क्या कर सकते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन आज शादाब के अंदाज से मुझे लगा कि वो एक हद से आगे नहीं जाएगा। शायद उसकी जॉब की मजबूरियां हैं। केस दूसरे एसपी के इलाके का है और उसकी शादाब से लगती है। इसका कहना है पुलिस दिलचस्पी नहीं ले रही है। फिर भी आप क्या कर सकते हैं? मैं जब तक कोशिश नहीं करूंगा किस तरह कह सकता हूं? मैंने कहा। हुमैरा मुझे कायल करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे इन लोगों से दूर रहना चाहिए जो 2 अफराद को मार चुके थे, मगर वो आदिल के लिए मेरे जज्बात समझने से कासिर थी। मैं अपने भाई के कातिलों को सजा पाते देखना चाहता था। शाम के करीब मैंने शादाब को कॉल की और उससे कहा कि मैं पिस्तौल से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इसलिए रुबीना से कही कि वो पिस्तौल मुझे लाते। शादाब ने रुबीना को कॉल करके कहा और उसने मुझे पिस्तौल ला दिया। 4 बजे मैं खामोशी से घर से निकला। मैंने कोशिश की कि रुबीना और बशारत की नजरों से बचकर निकलूं। पिस्तौल मैंने सामने की तरफ पतलून की बेल्ट में उड़स लिया था और शर्ट को पतलून से बाहर छोड़ दिया था, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि नीचे पिस्तौल है। गार्ड्स को कुछ पता नहीं था कि शादाब ने मुझे बाहर जाने से मना किया हुआ है, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो खास तौर से शादाब को इत्तला नहीं देंगे। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक टैक्सी मिल गई और मैंने टैक्सी वाले को ताजगढ़ की तरफ चलने को कहा। ताजगढ़ पुराने लाहौर के साथ मिला एक मुतवस्सित दर्जे का इलाका है। यह अटारी बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़क पर वाक़ है। यहाँ से पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है। मैंने कई बार सड़क से गुजरते हुए ये आबादी देखी थी, लेकिन कभी जाने का इत्तिफाक नहीं हुआ था। मेन रोड पर कमर्शियल एरियाज हैं, यहाँ दुकानें, होटल और वर्कशॉप्स हैं। आबादी इनके पीछे है। किसी जमाने में ये गांव होता था, मगर अब शहर का एक हिस्सा बन चुका है। अगरचे ये लाहौर म्यूनसिपैलिटी की हदूद से बाहर है। मॉडल टाउन से निकलकर वाल्टन कैंप से गुजरते हुए दरोग वाला की तरफ जाने वाली सड़क पर आए
ये बहुत बड़ी हाईडी HA और अस्करी के पीछे से गुजरती थी। दरोगाला के पास पहुंचकर टैक्सी वाले ने पूछा, ताजगढ़ में कहाँ जाना है जी? तो मुझे सड़क पर उतार देना। मैंने कहा तो उसने टैक्सी रोक दी। उतर जाए, यहाँ से ताजगढ़ की आबादी शुरू हो जाती है। यूटी रोड पर सामान लाने ले जाने वाले ट्रकों का हजूम था। वाघा बॉर्डर से रोजाना सैकड़ों की तादाद में माल बरदार ट्रक आते जाते हैं। मैंने टैक्सी वाले को फारिग किया और पैदल ही आगे बढ़ा। धूप बहुत तेज थी और बहुत कम लोग पैदल आ जा रहे थे। मैंने एक झुग्गी होटल का इंतखाब किया। यहाँ फिलहाल लस्सी चल रही थी और लोग टीवी पर इंडियन मूवीज देख रहे थे। मैंने भी लस्सी का ऑर्डर दिया। लस्सी लाने वाला मुश्किल से 12 साल का लड़का था और सूरत से होशियार लग रहा था। मैंने उसे 10 का नोट पेश की थी तो वो खुश नजर आने लगा। उसने बिला वजह गंदी मेज पर इससे भी गंदा कपड़ा मारकर उसे साफ करने की फजूल कोशिश की और बोला, जनाब लस्सी खोए वाली या सादा? सादा लाओ। 2 मिनट में वो लस्सी का बड़ा सा गिलास ले आया। उसने गिलास रखा तो मैंने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ एक बंदे की तलाश में आया हूँ, मगर मेरे पास सिर्फ नाम है। मैंने कहते हुए 100 का एक नोट हाथ में छुपाकर उस तरह हाथ सामने किया कि नोट का सुर्ख रुख झलके। मेरी तवक्का के अन मुताबिक उसने देख लिया और फिर जल्दी जल्दी मेज पर कपड़ा मारने लगा। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से पूछा, नाम क्या है? गौहर शाह। गौहर शाह जी भी कहलाता है। मैंने इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ वही सुन सके। लड़के का चेहरा सपाट रहा और मैं मायूस हुआ कि शायद उसने यह नाम नहीं सुना है। मगर चंद लम्हे बाद उसने इतनी धीमी आवाज में कहा, होटल से 2 गली आगे वाली लाइन में चले जाओ, कोने पर मोबाइल शॉप है। लेन क्रॉस करके सुर्ख टाइलों वाला मकान आएगा, इसके 2 घर बाद वाला घर है। मैंने 100 का नोट छोड़ा तो उसने कपड़ा मारते हुए इतनी महारत से गायब किया कि मुझे भी पता नहीं चला कि नोट कहाँ चला गया। मेरा काम हो गया था। मैंने लस्सी का गिलास खाली किया, इसने मुझे ठंडा कर दिया था। मैं होटल से बाहर आया। 2 गली आगे कोने पर मोबाइल की दुकान थी। इसके साथ अंदर जाने वाली गली खासी चौड़ी और कमर्शियल थी, क्योंकि इस पर भी दुकानें बनी हुई थी। गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। लेन खासी तवील साबित हुई और 200 गज बाद क्रॉसिंग आई। अगली गली में दाखिल होते ही सुर्ख टायरों वाले मकान ने तवज्जो हासिल कर ली। मगर मेरी मंजिल इससे आगे वाला 3 मंजिला मकान था, जो सुर्ख ईंटों से बना था और इसकी साख्त बता रही थी कि यह खासा पुराना था। इसके नीचे 4 सीढ़ी, ऊपर 2 पट वाला दरवाजा खुला था, जिसके ऊपर दायरे में लकड़ी की चौखट में रंगीन शीशे जड़े हुए थे। मैंने सामने से गुजरते हुए देखा, अंदर चांदनियां बिछी थीं और 4-5 मुस्टंडे टाइप के आदमी इन पर विराजमान थे। ये कोई घरेलू मकान नहीं था। इसका पहला कमरा ही बता रहा था कि गौहर शाह जी किस किस्म का शख्स था। जो आदमी किसी को मारने के लिए 2 कातिल भेजे, इसके बारे में शक तो होना भी नहीं चाहिए। गली से गुजरकर मैं दूसरी तरफ आया और एक आड़ में यूं खड़ा हो गया जैसे कुछ देर के लिए चिलचिलाती धूप से बचने के लिए रुका हूं। अब मुझे एहसास हो रहा था कि यूं मुंह उठाकर यहां चले आना ऐसा ही था जैसे आदमी शेर की कचार में चला आए। वो मेरी जान के दुश्मन थे और मुझे जानते भी थे। इनके आदमी मेरी निगरानी कर रहे थे और तभी उन्होंने रात हुमैरा के साथ मुझे घेर लिया था। बहरहाल ये बात साबित हो गई थी कि गौहर शाह जी नामी आदमी का वजूद था और इसने इन 2 कातिलों को भेजा था कि मेरा काम तमाम कर दें। अब मुझे चाहिए था कि वापस जाकर शादाब को इस बारे में बताता और वो आगे कार्रवाई करता। ये फैसला करके मैं वापस जाने के लिए मुड़ा था कि सामने ही लंबे बालों वाले को मौजूद पाया। न जाने किस वक्त वो खामोशी से मेरे पीछे आ गया था। वो मुस्कुराया और अचानक अपना सर मेरे मुंह पर दे मारा। ज़र्ब शदीद थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा था कि उसने थाम लिया और फिर कोई चीज़ मेरे सर के पिछले हिस्से पर बहुत जोर से लगी और इस बार तारीकी मुकम्मल हो गई थी।